دے کر شہید کر دیا گیا تو دوسرا بھائی مدینہ طیبہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. نانا جان کی امتیوں نے اس زمین کو تنگ کر دیا جس زمین کی قسم پروردگار عالم کچھ یوں کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اے محبوب مجھے اس شہر ناز کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما ہے، اس شہر محبت کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو آپ محسوس کیجئے کہ آپ کے وطن عزیز کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو اب اپنے گھر میں نہیں رہنا ہے، آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا ہے، کتنا گرا گزرتا ہے کہ جہاں پر آپ نے 5 سال 10 سال 25 سال 50 سال گزار دیے، پھر اس زمین کو چھوڑنا آپ کے لیے اتنا کٹھن ہوتا ہے. اور پھر محسوس کیجئے کہ ہمارے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑیے. ہمارے اوپر اس وقت کیا گزرے گی جس وقت ہمیں یہ کہا جائے گا کہ جہاں آپ کا باپ دفن ہے آپ اس جگہ کو چھوڑیے. ہم اور آپ پر اس وقت کیا گزرے گی جب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کی جہاں ماں دفن ہے اس جگہ کو چھوڑیے. آپ کے اوپر اس وقت کیا گزرے گی جب آپ کو یہ کہا جائے گا جہاں آپ کا نانا دفن ہے اس جگہ کو چھوڑیے. اب محسوس کیجئے حضرت سیدنا امام حسین شہید محبت شہید اعظم سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درد کہ جب مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنے پر لوگوں نے مجبور کیا تھا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس نواسے نے جب اتنا سارا کنبہ قبیلہ لے کر مدینہ طیبہ سے باہر نکلا ہوگا اور اس سے پہلے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری دی ہوگی تو اس وقت اپنے دل سے کیا کہا ہوگا حسین اعظم نے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور میں کیا حال رہا ہوگا. محسوس کریں یہ احساس کرنے والے کے اوپر اس چیز کا اثر مرتب ہوتا ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی اور یہ کہا ہوگا اے نانا جان اب آپ کا غلام اب آپ کا حسین آپ کا باپ مقدس شہر چھوڑ رہا ہے اور وہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنے آپ کو خلیفہ بنا لیا ہے اور پسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ناپاک ہاتھ میں حسین کا مقدس اور پاک ہاتھ جائے. اے نانا جان جا رہا ہوں آپ کا پاک شہر چھوڑ کر. اے نانا جان آپ ہمارے لیے دعائیں کرنا ہماری استقامت کے لیے دعائیں کرنا ہمارے صبر کے لیے دعائیں کرنا. ذرا آپ محسوس کر کے تو دیکھیں ایک بار کسی سے چھڑوا کر تو دیکھیں کیا حال اس پر گزرتی ہے کس چیز کو وہ اپنا سمجھے گا اور کس چیز کو لے کر وہ ساتھ جائے گا. یادیں جو ہوتی ہیں نا وہ دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. اسی طرح کے حالات بنے ہوں گے کل مدینہ طیبہ میں جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا جس کے ذکر میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے جب چھوڑے ہوں گے اور مدینہ طیبہ سے جب نکلے ہوں گے اور اس وقت خود محسوس کیجئے جہاں پر آپ نے اپنا بچپن دیکھا ہوگا اس وقت کو بھی محسوس کیجئے اپنے ذہن میں کہ جس کو چہار دیواری میں جہاں پر آپ کی کھڑکیاں یا کرداریاں گونجی ہوں گی اس وقت کو بھی محسوس کیجئے
जहां पर फरिश्तों ने झूला झुलाया होगा, उस वक्त को भी महफूज कीजिए, उस घर को भी महफूज कीजिए जिसमें एक वक्त था कि हाथों ने जन्नत और हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम थे, उस घर में जन्नत से जोड़ा उतारा गया था। उस वक्त को भी महफूज कीजिए अपने ज़हन में और दिलनशी कीजिए कि जिस वक्त आपने बचपन में उन गलियों में घुमा होगा जहां पर नाना जान ने उंगलियां पकड़ाकर आप उन गलियों में टहलाया होगा। उस वक्त को भी महफूज कीजिए जिसकी इस राह तक जाने के लिए ना कोई सवारी सिर्फ और सिर्फ कंधे रसूल रहा होगा। उस वक्त को भी महफूज कीजिए और उन दरो दीवार का जायजा लीजिए जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा शहर मुक़द्दस छोड़कर चला होगा। उस वक्त को भी महफूज कीजिए जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी अम्मी जान खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में गए होंगे और ये कहा होगा, है अम्मी जान आप तो हमें बचपन में छोड़ के चली गई, लेकिन आज के हालात ये पैदा होंगे कि आपके शहजादे को नाना का पाक शहर मुक़द्दस छोड़ना पड़ रहा है। उस वक्त को भी महफूज कीजिए और अपने ज़हन में इस चीज़ को बसाइए कि जब एक बीमार बच्ची को हज़रत सैयदा ज़हरा को छोड़कर बगैर किसी सहारे के हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने रखते सफर बांधा होगा। ये कल्ब वालों और दिल वालों की बात है कि जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन होगी वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है और जान सकता है। जिसके दिल में दर्द होगी वो जान सकता है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत कैसी रही होगी और उस शहर नाज से लगाव कैसा रहा होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहजादे ने जिस वक्त ये कहा आपकी आंख लगी, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार में आपकी आंख लगनी थी। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम तसल्ली देते हैं, शहजादा हुसैन जा रहे हो, तुम पर लाखों सलाम हो, जाओ मेरे दीन की इस्तिकामत के लिए, जाओ मेरे दीन के बका के लिए, जाओ मेरे दीन को संभालने के लिए, जाओ मेरे दीन को बचाने के लिए, जाओ कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जाओ ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस शहजादा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े से कुंबे कबीले को लेकर मदीना तैयबा की सरहद पर निकल जाते हैं और एक हसरत भरी निगाह पलट कर मदीना तैयबा को देखते हैं। गोया ये कह रहे हैं, ऐ शहर मुक़द्दस हुसैन तो जा रहा है लेकिन आने के लिए नहीं जा रहा है। गोया ये कहा होगा, मेरा शहजादा असगर तो जा रहा है लेकिन तुम्हें तेरे शहर में दोबारा दाखिल होने के लिए नहीं जा रहा है। गोया ये कहा होगा कि अब ये शहर मुक़द्दस हमेशा हमेशा के लिए छूट रहा है। ये वाक़या 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 61 हिजरी में पेश आया जब आपने मदीना तैयबा छोड़ा और मक्कातुल मुकर्रमा का रास्ते सफर बांधा। एक तरफ वो था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा था, दूसरी तरफ ये है कि उनका नवासा मदीना छोड़कर मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जा रहा है। हालांकि मक्का शरीफ जाने के बाद में रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की भरपूर खिदमत की गई और आपके इस्तक़बाल के लिए मक्का शरीफ के सरहदों पर लोग निकल कर आए और सबने ये कहा, अहलन व सहलन या इब्न रसूलल्लाह, आए इब्न रसूलल्लाह, मरहबा। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, इसलिए कि जिस नाना ने अपना वतन छोड़ा था उसके नवासे ने उसका घर बसाया है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अब मक्कातुल मुकर्रमा में क़याम पज़ीर हुए। मक्का शरीफ में रहते हुए हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने ना तो किसी लश्कर को इकट्ठा करने का हुक्म दिया, ना हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने अपने लिए किसी से बैत करवाई, बल्कि सैयदना इमाम हुसैन ने वहाँ वक्त गुजारा था। एक वक्त वो भी आया कि कूफियों के खतूत आने शुरू हो गए। सबसे पहले जो खत लिखने के लिए अब्दुल्लाह बिन सुद के और सुलेमान बिन सुद के घर पर लोग जमा हुए गुफा में, और जमा होने के बाद सुलेमान बिन सुद ने एक छोटी सी तकरीर कही जिसका मजमुआ और जिसका मज़मून ये निकल कर सामने आता है तारीखों के हवाले से कि सुलेमान बिन सुद ने कहा था कि ऐ कूफियों, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा से हिजरत करके मक्का शरीफ चले आए हैं। अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद तख्तनशी हो चुका है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार कर दिया है। ऐ कूफियों, आप शियाने अली रहे हो उनके, तो अब आपका फर्ज बनता है कि हुसैन आजम को आप यहाँ बुलाओ और उनके दस्ते हक परस्त पर बैत करो। बेशक हुसैन हक है, हुसैन के वालिद हक है, हुसैन का खानदान हक है। ये मुख्तसर का खुतबा सुलेमान बिन सुर्द ने दिया था और उसके बाद एक खत लिखवाया था कि ऐ हुसैन आजम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन, ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नवासे, हम इस वक्त बेयारो मददगार हैं। आपके वालिद के हम शिया हैं और हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले हैं। आप कूफा तशरीफ ले आए ताकि हम आपके दस्ते हक़ पर बैत कर लें। हमने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, अब हमारे ऊपर कोई रहबर नहीं है। सबसे पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुद और अब्दुल्लाह बिन सुबई और अब्दुल्लाह बिन दाल 53 अर्जियां तैयार की गई। 53 अर्जियों में भी यही बातें दर्ज थी। अरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कूफा तशरीफ ले आए। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारे लिए बुरा हाल होगा, मजबूरन हमें यजीद के हाथ पर अपना हाथ देना पड़ेगा। ये सब कूफियों के अल्फाज थे, ये सब उनके अल्फाज थे जिन्होंने बुलाकर सैयदना इमाम हुसैन को धोखा दिया था। ये सब उनके अल्फाज थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को भूखा और प्यासा रखा था। ये सब उनके अल्फाज थे जिनके मुकाबले में हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में जिन्होंने तलवार निकाली थी। ये सब उन कूफियों के अल्फाज थे जिन्होंने बार बार खत लिखकर रावी बयान करता है कुछ ही दिनों में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 150 खतूत आ गए कूफियों के। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के पास जब आखिरी खत आया उसमें ये लिखा हुआ था, उस तहरीर साफ थी, ऐ हुसैन इब्ने अली, अगर आप कूफा नहीं आए तो हम यजीद के हाथ पर मजबूरन बैत कर लेंगे और कल बरोज़े हश्र जब आपके नाना जान पूछेंगे कि तुमने यजीद जब बातिल था, यजीद जब फासिक व फाजिर था, यजीद जब तारिक नमाज था, यजीद जब इर्तिकाब गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला था, तो तुमने उसके हाथ पर बैत क्यों की? तो बताइए उस वक्त आपका जवाब क्या होगा? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस छोटे से मज़मून को पढ़ा, आपका वजूद हिल गया और आपने फरमाया, अब मेरा मक्तल मुझे पुकार रहा है। क्यों ना हो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खूब मालूम था और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साफ ज़ाहिर था कि मेरा ये बेटा हुसैन आज़म मैदान मारिया यानी मैदान करबला में बेआबोदाना कत्ल किया जाएगा, जिसकी मिट्टी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन लेकर आए थे, जिसकी मिट्टी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी लेकर आए थे, जिसकी मिट्टी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम भी लेकर आए थे। हज़रत उम्मुल फज़ल के का बयान है, एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं गई, मैंने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को अपने पहलू में बिठाए हुए हैं और रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन खेल रहे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर उम्मुल फज़ल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान मेरे सरकार, आप क्यों रो रहे हैं? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्मुल फज़ल, आप देख लीजिए अभी हमारे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा सरकार आप अपने शहजादे हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हमने कहा हाँ मोहब्बत करते हैं। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शहजादे से आप मोहब्बत करते हैं उस शहजादे को एक मैदान होगा जिसका नाम मैदान करबला होगा, दूसरा नाम मैदान मारिया होगा और वो जमीन चटियल होगी, उस जगह पे आबोदाना कत्ल किया जाएगा।
میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو اس زمین کی مٹی میں لا کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت جبریل گئے کوفہ اور زمین کربلا سے مٹی اٹھائی تو وہاں کی مٹی سرخ نکل کر خون نکل کر سامنے آئی، اور اس کے بعد میں لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مٹی دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل سے کہا کہ دیکھ لیجیے یہی وہ مٹی ہے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہزادہ حسین قتل کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، رسول گرامی وقار کو معلوم تھا میرا شہزادہ قتل کیا جائے گا، بے آب و دانہ قتل کیا جائے گا۔ حضرت مولائے کائنات کو معلوم تھا میرا حسین قتل کیا جائے گا۔ خاتون جنت کو معلوم تھا میرا حسین قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی کو معلوم تھا میرا شہزادہ قتل میرا بھائی قتل کیا جائے گا۔ گویا خاندان کے تمامی افراد کو معلوم تھے کہ حسین اعظم کو قتل کیا جائے گا، اور ایک قتل کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں قتل کرنے والے ہوں گے۔ ایک قتل کرنے والا نہیں ہوگا، ایک ظلم کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اور ظلم بھی ایسا ہوگا کہ نہ وہاں کھانا ہوگا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ نہ وہاں پانی ہوگا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ بے بدن ہوں گے، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ چٹیل میدان ہوگا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ 6 ماہ کے شیر خار کو نہیں چھوڑا جائے گا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ چادر تطہیر مقدس بیویوں کے سروں سے چھین لیا جائے گا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ بیمار کے پیروں میں بیڑیاں جکڑ دی جائیں گی، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ ننگے اونٹوں پر ان بچیوں کو بٹھایا جائے گا، ظلم بھی ایسا ہوگا جس کو آسمان میں کبھی نہیں دیکھا اسے ننگے سر کوفہ میں پھرایا جائے گا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ آسمان دیکھ کر ہل جائے گا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ زمین کا کلیجہ دہل جائے گا، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ فرشتے رو پڑیں گے، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ حضرات الارض سسکیاں بھرتے نظر آئیں گے، ظلم بھی ایسا ہوگا کہ حیوان نباتات و جمادات سب حسین کے قتل پر روئیں گے۔ آئیے آپ اس کا جائزہ لیجئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں جب آخری خط آپ نے اس مطالعے میں لیا، آپ نے فیصلہ کیا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اجلے صحابہ کو بلا کر آپ نے مشورہ کیا کہ یہ دیکھ لیجیے یہ کوفیوں کے طرف سے خطوط آئے ہوئے ہیں، اور 1-2 خطوط نہیں بلکہ سینکڑوں خطوط آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کے طرف سے مشورہ کیا ہے؟ سب صحابی رسول نے یہی کہا حسین اعظم آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، اگر یہاں سے آپ لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حسین اگر آپ کوفہ جائیں گے تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، حسین اگر آپ کوفہ جائیں گے تو آپ کے خاندان کی بربادی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت امام نے فرمایا لیکن مجھے بار بار خواب میں وہی میرا مقتل دکھایا گیا ہے، بار بار مجھے وہی زمین دکھائی گئی ہے، بار بار مجھے اسی وادی کی طرف بلایا گیا ہے، بار بار مجھے اس چیز کی یاد دلائی گئی ہے کہ حسین تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے میرے مقصد کی طرف جانے دیا جائے۔ لیکن ہاں اگر آپ حضرات کہتے ہیں تو آپ اس سے مجھے میرے جانے سے پہلے میں اپنا سب سے پہلے وکیل مقرر کرتا ہوں، اور آپ نے وکیل حضرت مسلم بن عقیل کو مقرر کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل خوشی خوشی راضی ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کے ساتھ ہو لیے، جیسا کہ تاریخوں میں ملتا ہے محمد اور ابراہیم دونوں ساتھ ہو لیے۔ کیوں ساتھ ہوئے تھے؟ گویا ان کو معلوم تھا امی جان نہیں ہے، بابا جان ہے، ایک بہن ہے جو ان دونوں بھائیوں سے بڑی ہے، اب ان کے پاس رہ کر ہم کیا کریں گے؟ جہاں بابا جان جا رہے ہیں ہم انہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچے بصیر ہو گئے، بچوں نے یہاں تک کہا تھا اس وقت کہ اے بابا جان آپ اپنے سفر میں اکیلا نہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو سفر جلدی کٹ جائے گا، اے بابا جان آپ اکیلے نہ جائیں، آپ ہمیں سفر میں ساتھ لے کر چلیں، کیا کہ ہم راستے میں رہیں گے
آپ کی قبولی کرتے رہیں گے۔ اے بابا جان آپ اکیلے جا رہے ہیں، ہمیں لے کر چلے، ہم کھلونے نہیں مانگیں گے، ہم کھانے کی چیزیں نہیں مانگیں گے، آپ کے ساتھ ہم مصیبتیں اٹھا لیں گے، لیکن بابا جان آپ اپنے سے ہمیں جدا نہ کریں۔ دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور سے ملاحظہ فرمائیے شہزادے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور گلشن نبوت کا پہلا خون جو ہے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقتل کی طرف چلے ہیں، گویا یہ وکیل نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے سارے راستے کو مسائل و آلام کو جھیلتے ہوئے آپ نے کوفہ میں قدم رکھا تو قاضی شریح کے وہاں آپ نے قیام کیا۔ روایتوں میں آتا ہے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے ابن اسیر اور ابن کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے تاریخ الخلفاء کے حوالے سے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قاضی شریح کے وہاں پہنچے 2 دن کے اندر حضرت سیدنا امام حسین کے دستے حق پرست پر 12,000 شیان علی امام حسین کے نام کی بیعت لے چکے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت جو ہے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے وہ تھے۔ جمعہ کا دن تھا، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور خطبے میں یہ کہا کہ اے لوگوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے درمیان آئے ہوئے ہیں، لیکن خبردار انہیں دھوکہ مت دینا، اس لیے کہ تم لوگوں کی بے وفائی مشہور ہے، تم لوگ جو ہے ان کے والد کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہو، تم لوگوں نے ان کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہذا حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت سیدنا امام حسین کے فقیر بن کر آئے ہیں، نائب بن کر آئے ہیں، ان کے ساتھ ہی دھوکہ مت کرنا، اور اگر دھوکہ ہی دینا ہو تو سب سے پہلے انہیں بتا دو اور یہ کہہ دو کہ تاکہ وہ واپس سے جس شہر مقدس سے آئے ہیں اسی شہر مقدس کو واپس چلے جائیں۔ یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے۔ اسی میں سے ایک نابکار اٹھ کر کھڑے ہوا اور اس نے کہا کہ تم نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ دے کہ یزید تمہیں معاف کر دے تو تم جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور انہیں قتل کرو یا جیل میں ڈال دو اور یہاں پر یزید کی بیعت لوگوں سے لو۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے جسم کا کی بوٹی بوٹی ہو جائے چلے گا، لیکن اہل بیت رسول اللہ سے میں غداری نہیں کر سکتا۔ میں نے زمانے نبوت دیکھا ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت و پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس خاندان کے ساتھ غداری کرنے کا مطلب یہ ہے یہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنا ہے۔ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، یہاں کی ذلت و رسوائی ہمیں گوارا ہے، لیکن کل بروز حشر کے دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بارے میں پوچھیں گے، اپنے فطرتیوں کے بارے میں پوچھیں گے، اپنے اہل خانہ کے بارے میں پوچھیں گے، تو اس وقت نعمان بن بشیر کا جواب کیا ہوگا؟ یہ تاریخی جملے تھے اس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ منبر سے گزر گئے۔ اب یہ نابکار جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کوفہ کی مسجد سے نکلتا ہے اور ایک خط عبید اللہ ابن زیاد لکھتا ہے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، یزید کو انفارم کر دے، یزید کو خبردار کر دے کہ کوفہ میں اس کے خلاف جو ہے بغاوتیں اٹھ رہی ہیں، کوفہ میں اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ خط جو ہے جس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے اور حضرت مسلم کا ذکر دیکھتا ہے، نائب امام حسین کا ذکر دیکھتا ہے، آنکھ بھولا ہو جاتا ہے۔ اس نے خط لکھا یزید کے پاس، یزید نے وہاں سے بھیجا کہ تم بصرہ کی گورنری چھوڑو، اپنے بھائی کو عثمان کو اپنے جگہ پر بٹھاؤ اور جلدی سے تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جا کے وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر کرو۔ یہ یزید پلید کے جملے تھے جو کہہ رہے ہیں کہ یزید میدان کربلا میں نہیں آیا تو اسے جہنمی کیسے کہا جائے، جو کہہ رہے ہیں یزید تو دور بیٹھا ہوا تھا
उसने जंग नहीं लड़ी, उसे जहन्नमी करार कैसे दिया जाए, उसे ये कैसे कहा जाए कि वो फासिक और फाजिर है। अपने जुमले संभाल कर निकालो वरना ईमान के जनाजे निकल जाएंगे। ये अहले बैत रसूलुल्लाह का मामला है और ये अहले बैत वैसे ही है कि जैसे हमारे पास 30 पारे कुरान है, इसी तरीके से हमारे पास अहले बैत हम और आपके पास अमानत है। जैसे हमारे लिए कुरान पाक में खयानत करना जुर्म है, इसी तरीके से अहले बैत रसूलुल्लाह के साथ हम और आप को खयानत करना जुर्म है। अब इधर का मामला सुनिए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास जब ये खत पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने भाई को उस्मान इब्ने ज़ियाद को अपने तख्त पर बिठाया और ये कूफा कादिसिया हिजाज मुक़द्दस के रास्ते से नकाब पहन कर ये जालिम आ गया। लोगों ने ये समझा कि आले रसूल तशरीफ लाए हैं, लोगों ने ये सोचा कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए हैं। हमारे जो खत हुसैन आज़म के पास पहुंचे थे, शायद हुसैन आज़म को खत मिल चुके हैं, इसीलिए इमाम हुसैन तशरीफ ले आए हैं। इससे पहले का मामला सुनिए। जिस वक्त काजी शुरैह के वहां हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पनाह गज़ी थे, उस वक्त आपने हालात साज़गार पाते हुए हुसैन इब्ने अली को एक खत लिखा था और वो खत तारीखों में महफूज है। उसके जुमले ये हैं कि ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं मुस्लिम बिन अकील आपका भाई, यहाँ के हालात साज़गार है, यहाँ के लोग आपके गालिब के शिया हैं, यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, आप यहाँ जल्दी से तशरीफ ले आए। इनके सर पर कोई सरपरस्त नहीं है। हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या मालूम था कि ये खत लिखने के बाद अंजाम कितना भयानक होने वाला है, अंजाम कितना बुरा होने वाला है, एक क़यामत सुग़रा बर्पा होने वाला है। मैदाने करबला में, मैदाने नैनवा में, मैदाने मारिया में ये कूफा एक तारीखी जगह बन जाएगी जो आले रसूल की मक़तलगाह बनेगी। इन्हें क्या मालूम था। अब आगे जायजा लीजिए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिख दिया और जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा पहुंच गया, तमाम लोग निकल कर सामने आए और अहलन व सहलन मरहबा या इब्ने रसूलुल्लाह की सदाएं लगाई। अब जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दारुल इमारा में पहुंचता है, चढ़कर बोलता है, ऐ लोगों, तुमने जिस तरीके से बगावत की है, जिस तरीके से यजीद बिन अमीर माविया के खिलाफ तुमने साजिशें की है, एक एक बख्शे नहीं जाओगे, एक एक को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे माल को जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे खेतों खलियान सब छीन लिए जाएंगे। ऊफी ला यूफी ही थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि हालात साज़गार नहीं है तो कादी शुरैह के यहाँ से आप उठे और हज़रत हानी बिन उरवा के घर में आकर पनाह गज़ी हुए। हज़रत हानी बिन उरवा ये अहले बैत रसूलुल्लाह के वफादार रहे हैं। हज़रत हानी बिन उरवा के घर में रहकर आपने हालात का जायजा लिया और मालूम ये किया कि हज़रत सैयदना इमाम मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ आने के लायक नहीं है, इसलिए कि हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। और इससे पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने कूफा के जो सबसे बड़े और नामवर मौज़ा थे, सबसे बड़े लोग थे, जो अपनी जमात में सबसे मोतबर माने जाते थे, 10-20 लोगों को कैद बंद करा दिया, नजर बंद करा दिया दारुल इमारा के अंदर। उसके बाद में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मे जो है हानी बिन उरवा के घर से बाहर निकलते हैं और अपने मुहिब्बीन को पुकारते हैं। देखते ही देखते 40,000 की जमात आपके साथ आ गई कूफा में। तारीख मुलाहजा करो, तब आपको पता चलेगा कि हुसैन इब्ने अली पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए हैं। हुसैन इब्ने अली के साथ क्या क्या नहीं किया गया है, लेकिन इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है। हुसैन इब्ने अली ने अपना खून इसको दिया है। आइए मुलाहजा करें, हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 40,000 की जमात थी और ये जमात निकल कर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि चलो दारुल इमारा का घेराव करते हैं। ले जाकर दारुल इमारा की घेराव कर ली गई। करीब था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर एक लफ्ज बोल देते तो उसी वक्त
वक्त किले फतेह हो जाता और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और उसके हमनवा सब के सब गिरफ्तार हो जाते। लेकिन ये खानदान रसालत के फूल है, ये पहल नहीं करते हैं जंग में। इनका सोचना ये था कि जो काम भुजक और बात से हो जाए वो जंगो जिदाल से नहीं होगा। इसलिए कि कलमा पढ़ने वाले इधर भी है, कलमा पढ़ने वाले इधर भी है, रोज़ा नमाज करने वाले इधर भी है, रोज़ा नमाज करने वाले इधर भी है, मुफ्तियों कारी इधर भी है, मुफ्तियों कारी इधर भी है, काज़ियों मुहफ़्फ़िज़ इधर भी है, काज़ियों फ़क़ीह इधर भी है। सब जानते हैं, सब कलमा को मुसलमान है, लेकिन हालात के पेशे नजर हर कोई करवटें पर करवटें बदल रहा है। दूसरे के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अब इतना मौके को गनीमत जानकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जिन रोसा को गिरफ्तार किया था, जिन सरदारों को गिरफ्तार किया था, उन तमाम को दारुल इमारत के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अपने अपने खानदान और कबीले के लोगों को कहो कि वो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे, वरना तुम्हें इसी दारुल इमारत के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे जिस्म को इसी दारुल इमारत के नीचे फेंक दिया जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इतना कहना था। वो जो 10-20-50 लोगों को नजरबंद किया गया था, सब दारुल इमारत के ऊपर चढ़ गए और सबने एक ही जुबान में एक ही अल्फाज कहे थे कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे खानदान वालों, ऐ मेरे कबीलों वालों, मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो और यजीद की इताअत करो, वरना हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारा सरदार वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये कहा था। हालात ये हुए कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पीछे का जायजा लिया तो क्या देखते हैं 40,000 से 20,000 भी नहीं बचे हैं। धीरे धीरे शाम होते होते जिस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज मगरिब के लिए बिफा की मस्जिद का तवज्जो रुख किया, आपके साथ 500 की जमात थी। जरा सोचे हालात कैसे बदल रहे हैं। 40,000 से 500 के ऊपर आ जाना और उसके बाद मस्जिद पहुंच जाना। हज़रत इमाम मुस्लिम ने जिस वक्त मुसल्ले पर कदम रखा और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके तकबीर तहरीमा करके नियत बांधी और जिस वक्त आपने सलाम फेरा 500 की जमात वहां से नवारा थी, गायब थी। आप जरा सोचिए, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों में आंसू आ गए। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से निकलते हैं और हज़रत चढ़ गए और सबने एक ही जुबान में एक ही अल्फाज कहे थे कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे खानदान वालों, ऐ मेरे कबीलों वालों, मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो और यजीद की इताअत करो, वरना हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारा सरदार वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये कहा था। हालात ये हुए कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पीछे का जायजा लिया तो क्या देखते हैं 40,000 से 20,000 भी नहीं बचे हैं। धीरे धीरे शाम होते होते जिस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज मगरिब के लिए बिफा की मस्जिद का तवज्जो रुख किया, आपके साथ 500 की जमात थी। जरा सोचे हालात कैसे बदल रहे हैं। 40,000 से 500 के ऊपर आ जाना और उसके बाद मस्जिद पहुंच जाना। हज़रत इमाम मुस्लिम ने जिस वक्त मुसल्ले पर कदम रखा और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके तकबीर तहरीमा करके नियत बांधी और जिस वक्त आपने सलाम फेरा 500 की जमात वहां से नवारा थी, गायब थी। आप जरा सोचिए, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों में आंसू आ गए। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से निकलते हैं और हज़रत हानी बिन उरवा के घर चले जाते हैं। अब पता ये चलता है कि लोगों को कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहीं पता नहीं चलता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का फरमान, उसके सिपाही लिए कूफा की गलियों में घूम रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि मुस्लिम बिन अकील का पता लगाया जाए, मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ कर जो है दारुल इमारत में लेकर जाया जाए। हज़रत हानी बिन उरवा के घर में हज़रत मुस्लिम बिन अकील महफूज थे। आपको एक कमरे खास में रखा गया था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कुछ पता न चला कि मुस्लिम बिन अकील किसके मकान में ठहरे हैं, मुस्लिम बिन अकील किसके घर में रह रहे हैं। जब कुछ मालूम ना हुआ तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने हबशी गुलाम
तमाम मोगल को इसके चीज के लिए हायर किया, इस चीज के लिए मुकर्रर किया और कहा कि तुम्हें हम 4000 दीनार दे रहे हैं और इस दीनार को लेकर तुम जो है मुस्लिम बिन अकील का पता लगाओ और जासूसी करो कि देखो वो कहां मिल रहे हैं। वो मोगल गुलाम ढूंढता रहा, एक दिन तलाश किया, 2 दिन तलाश किया, 3 दिन तलाश किया, आखिरकार 5वें 6वें दिन में मस्जिद में जाकर के मोगल गुलाम पहुंच गया। मस्जिद में जाने के बाद में देखता है बहुत सारे चेहरे मौजूद थे, तमाम चेहरों को देखने के बाद में वो पलटता है आखिर किससे पूछा जाए और किससे जाहिर किया जाए कि मुस्लिम बिन अकील का पता बताए। हालात साजगार नहीं थे, अगर खुल्ला पूछता तो मुगल कत्ल किया जाता, लिहाजा उसने ये नहीं चाहा, वो चाहा कि किसी तरीके से चुपके से पूछा जाए और किसी ऐसे शख्स से पूछा जाए जो मोहब्बत अहले बैत रखता हो। आखिरकार जब नमाजी मस्जिद से चले गए, एक कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, एक सहाबी रसूल बैठे हैं जिनका नाम तारीखों में हज़रत मुस्लिम बिन औसजा असदी आता है। उनके पास ये नौकर जाता है, सलाम करता है और सलाम करने के बाद कहता है हम शाम से आए हुए हैं, हमारा नाम मोकर है, हम जो है अहले बैत रसूलुल्लाह के वफादार हैं और हमने इस जो है पता किया है, हमें मालूम हुआ है कि कूफा में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से कोई चश्मो चराग कूफा में आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनकी मदद करें। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा असदी जब ने देखा कि ये जो है हमसे किसी तरीके से जासूसी के मामले से आजाद पेश आ रहा है, उसके बाद मुस्लिम बिन औसजा असदी कहते हैं कि हमने कुछ उसे न बताया, लेकिन आखिरकार जब 4000 दीनार निकाल कर मुस्लिम बिन औसजा असदी के सामने रख देता है और कहता है हमने ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लिए दिया है और उन्हीं की बारगाह हमें ये नजराना पेश करना है, उन्हीं के बारगाह हमें ये नजराना देना है। लेकिन अगर आप वफादार हुसैन हैं, अगर वफादार अहले बैत हैं, अगर मुहिब्बे अहले बैत हैं, तो मेहरबानी करके हमें ये बता दीजिए कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील किसके घर में रहते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील का पता हज़रत मुस्लिम बिन औसजा असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे साथ देते हैं मोगल को और लेकर हज़रत हानी बिन उरवा के घर में जाते हैं, एक कमरे खास में। अब हालात यही रहे, ले जाकर 4000 दीनार रहे, 4000 दीनार हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील के सामने वो मोगल नामी गुलाम रख देता है और बड़ी ज़हारे मोहब्बत करता है, मोहब्बत और प्यार के साथ उनके साथ पेश आता है। हज़रत मुस्लिम ने भी समझा कि वाकई ये मेरा मुहिब है। इसके बाद में दिन भर ये हज़रत मुस्लिम के पास रहता और शाम के वक्त सारे हालात का जायजा लेकर ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास दारुल इमारत में पहुंच जाता और सारी रिपोर्ट वहां दे देता। हालात ये हो गए कि एक दिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो साथी थे यानी हानी बिन उरवा, उनके पास एक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कासिद आता है कि चलो तुम्हें दारुल इमारत में बुलाया गया है। हज़रत मुस्लिम बिन हानी बिन उरवा ने पहले तो कभी का बहाना बनाया, लेकिन जब बार-बार कासिद आता रहा उसके बाद हज़रत हानी बिन उरवा दारुल इमारा में चले गए। अब दारुल इमारा में जाने के बाद में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को आपने सलाम किया, लेकिन उसने सलाम का जवाब नहीं दिया और सीधा जुमले में ये कहा कि तुमने अपने घर को साजिशों का अड्डा बना रखा है, तुमने जो है मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ठहराया है, ऐसा जुल्म ज़फ़ा है, खानदाने रसूल को अपने घर में ठहराने की सजा दी जा रही है। हज़रत हानी बिन उरवा पहले तो बहाना करते हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है, कोई मेहमान नहीं है। आखिरकार जब वो मोगल गुलाम सामने आता है तो हज़रत हानी बिन उरवा को कोई चारा ना रह जाता है। आपने कहा कि हमने उनको बुलाया नहीं है, वो हमारे घर में खुद ही आए हैं, लिहाजा अहले बैत रसूलुल्लाह से हैं, हमारे दिल को ये गवारा ना हुआ कि सुनसान वादी में जहाँ बेवफाओं की हवाएं चल रही है, सब किसी के सहारे पर हम उन्हें छोड़ दें, हम अपने घर में उन्हें रख लिए हैं और हमारे मेहमान हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके जितने दिन खिदमत कर सके, जितने दिन उनके कदम धो
कर पी सके अहले बैत रसूलुल्लाह से है। जब इतना कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आग बबूला हो गया और उसने दौड़कर एक छापड़ हज़रत हानी बिन उरवा के मुंह पर मारा। मारना था कि आपके मुंह से खून आ गया। उसके बाद हानी बिन उरवा को नजर बंद कर दिया गया। जब हानी बिन उरवा को नजर बंद कर दिया गया उसके बाद उनके कबीले वालों ने हाथ उठाया कि चलो हानी बिन उरवा को छुड़वाया जाए। अब यहाँ पर हफ्ते हानी बिन उरवा को छुड़वाने के लिए उनके कबीले वाले बहुत सारे अफराद दारुल इमारत के करीब जुट गए, इकट्ठा हुए कि किसी तरीके से हानी बिन उरवा को छुड़वाया जाए, उसके कैद से रिहा किया जाए, जो नजरबंद किया गया है उनको छुड़ाकर फिर से उनको बाहर किया जाए। जब उसके खानदान वाले पहुंचे उसके बाद में काजी शुरेह से ये कहता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कि जाकर देख लो मार पीट के बाद हानी का क्या हाल है। जब काजी शुरेह जाते हैं उनके साथ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने गुलाम को भी साथ लगा दिया कि देखना कि काजी शुरेह जो है हकीकत में अहले बैत रसूलुल्लाह के वफादार हैं। ये जो बात कहे या वो जो बात कहे दोनों के दरमियान जो भी बातें हो मुझे आकर बताना। उसके बाद में काजी शुरेह जब जाते हैं हज़रत हानी बिन उरवा ने कहा कि मेरे खानदान वालों से कह दो कि अगर 10-12 लोग दारुल इमारत के अंदर आ जाए तो मुझे आसानी से रिहा कर सकते हैं, मुझे आसानी से छुड़वा सकते हैं। लेकिन ये बात जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के गुलाम ने जब सुना कहा खबरदार काजी साहब ऐसी बात उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने नहीं करना या उनके खानदान या उनके रिश्तेदार या हानी बिन उरवा के खानदान या उनके कबीले से ऐसी बातें मत करना। उसके बाद में हज़रत काजी शुरेह जो होते हैं वो जाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने कहते हैं उनके खानदान से कह दीजिए कि हानी बिन उरवा के हालात ठीक हैं। अब तक के हालात मुलाहिजा फरमाइए। मोहम्मद बिन अशअश को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि जाओ मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करो। रात का आधा पहर गुजर चुका है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब देख लिया कि हानी बिन उरवा का घर रहने के काबिल नहीं है, आपने रात के पिछले पहर आप निकलते हैं और दरवाजे पर जाते हैं और एक दरवाजा मामूल मिलता है जहां पर इस एक दिन था हज़रत मुस्लिम बिन अकील आए थे तो हर दरवाजा इस्तेमाल के लिए खड़ा था, हर पैर आपको हर पैर जो है आपके चुनने के लिए लोग तैयार थे। लेकिन आज का दिन ये है, आज की रात ये है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लिए कुफा में सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। एक टिमटिमाता हुआ चिराग चल रहा है। एक बुढ़िया औरत अपने घर के सामने बैठे हुई अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तारीखों में उसका नाम तो आता है। नवाब के पास जाते हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील, आपने फरमाया बीबी जी के पानी का प्याला मिल सकता है? हाँ पानी का प्याला दे सकते हैं। बीबी जी अंदर गई, वहाँ अंदर गई और पानी लेकर बाहर आई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील पानी पीते हैं और पीने के बाद वहीं बैठ जाते हैं। प्याला रखने जब दुआ नानी बुढ़िया अंदर गई आकर क्या देखती है हज़रत मुस्लिम बिन अकील वहीं बैठे हैं। तो ने कहा कि आपको मैंने पानी पिला दिया है और आप अपने घर चले जाइए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील बोलने लगे, आपने फरमाया बीबी जी हमारा यहाँ कोई घर नहीं है। हाँ जब हम आए थे तो हमारे लिए बहुत सारे घर थे, हमारे लिए बहुत सारे छत थे, हमारे लिए बहुत सारे हाथ थे, हमारे लिए बहुत सारे मददगार थे। लेकिन आज की रात में अगर तुम मुझे पनाह दे दो तो कल मैदान महशर में हम नाना जान से कहकर तुम्हें बड़ी जन्नत दिला देंगे। ये जुमले थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके एक मरतबा तुमने नशे में धुत था, यहाँ तक कि सुबह की सईदी नमदार हुई, दारुल इमारत में पहुंच गया और जाकर कहा कि जिसे आप तलाश कर रहे हैं वो हमारे घर में आराम कर रहा है। आप हुआ यूं कि मोहम्मद बिन अशअश को एक कष्टा देने के बाद में दुआ बुढ़िया के घर पे हमला करवा दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देख लिया कि किसी सूरत भी अब इनसे लड़े बगैर नहीं रहा जा सकता तो आपने भी तलवार सोच ली और तलवार ध्यान से बाहर निकाली। ध्यान से बाहर निकालना था कि सब के सब पीछे हटे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। आखिरकार हालात ये हुए कि एक तलवार लगी जिससे आग के ऊपर का होंठ कट गया, आग का कान कट गया और दो सामने के दांत टूट गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने मोहम्मद बिन अशअश चिल्लाकर कहता है कि आपके लिए अमान है, आपके लिए अमान है, आपके लिए अमान है। जब इतना कहना था हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर मोहम्मद बिन अशअश तूने अमान हमें ना दी होगी तो कसम है सुबहानहू ला शरीक की मेरे जिस्म में एक भी कतरा अगर खून
बाकी रहता तो तुमसे हम लड़ते रहते। मोहम्मद बिन अशअश ने कहा नहीं नहीं, आप तलवार न चलाएं, आपके लिए हम अमान देते हैं। उसके बाद में आपको बग्गी में बिठाया गया। सबसे पहले आपके साथ धोखा ये किया गया कि आपके साथ जो तलवार थी उसे छीन लिया गया बग्गी में बिठाते ही। उसके बाद दारुल इमारत के साथ ले जाया गया। दारुल इमारत के अंदर जब मोहम्मद बिन अशअश पहुंचता है, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वहां सामने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के रखता है। मोहम्मद बिन अशअश कहता है आप हजरत मुस्लिम बिन अकील को कुछ ना कहें, इसलिए कि हमने अमान दी है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चिल्लाकर कहता है अबे महमूद, तू कौन होता है अमान देने वाला? मैं जिसे अमान दूंगा वो अमान पाएगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद एक जालिम और नाबकार बदकार शख्स था। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातब होता है और कहता है तुझे सलाम करना नहीं आता है? हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं अगर तुमने आज हमें जो है अमान दे दी तो आज के बाद बहुत सारे दिन ऐसे आने वाले हैं तो हमारे तुम्हारे दरमियान सलाम और कलाम होते रहेंगे। इसके अलावा तारीख ने और दो चार जुमले महफूज किए हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। वो ये थे कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा यहाँ आए हो साजिशों का अड्डा बनाने के लिए, आए हो खिलाफत हड़पने के लिए, आपने फरमाया हम खिलाफत हड़पने के लिए नहीं आए हैं बल्कि कूफियों के खसूस हुसैन आजम के पास गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना नायब और खलीफा हमें मुकर्रर फरमाया है, इसके बाद हम यहाँ आए हुए हैं। इसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और भी दो चार बातें होती हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने पानी मांगा, आपको पानी का प्याला दिया गया, लेकिन जैसे ही आपने मुंह को लगाया खून का कतरा उसमें गिर गया, आपने पानी का प्याला रख दिया। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है ऐ मुस्लिम, तुम्हारी किस्मत में पानी का कतरा भी नहीं लिखा है। हज़रत मुस्लिम कहते हैं हमारी किस्मत में हौज़े कौसर का जाम लिखा हुआ है, तुम्हारे पानी की हमें जरूरत नहीं है। हमारे नाना जान हौज़े कौसर से जाम पिलाएंगे, हमारे बाबा जान अली मुर्तज़ा जाम पिलाएंगे, खातून जन्नत मां हमारी इंतजार कर रही है। इतना कहना था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है तुम्हारा सिलसिला और तुम्हारा नसब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा है? तुम्हारी कोई निस्बत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हज़रत मुस्लिम बिन अकील तलब गए और आपने फरमाया तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, इसलिए कि दुनिया जानती है कि मुस्लिम बिन अकील अहले बैत रसूलुल्लाह से है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है। इतना कहना था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है अगर तुम अपनी जान की अमान चाहते हो तो चलो दारुल इमारत की छत पर खड़े हो जाओ। आप चले गए, दारुल इमारत की छत पर खड़े हो गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि अब मेरा कहा मानो और जो हम कहने जा रहे हैं मेरे साथ दोहराओ, तब तुम्हें तुम्हारी जान की अमान दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बता क्या कहना है? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है कि कहो हुसैन बाकी है, माअज़ल्लाह वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, कहो यज़ीद अमीरुल मुमिनीन है, कहो हुसैन जबरदस्ती यहाँ पर आ रहे हैं, कहो हुसैन फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि उनके बाप अली को गाली दो। इतना कहना था। हाशमी शेर ने ललकार कर कहा हमारे खानदान का ये तौर तरीका नहीं है कि गालियां दी जाए, हमारे खानदान का तौर तरीका यह है कि बद से बदतर शख्स को इज्जत दी जाती है। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का तौर तरीका जैसे ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने बताया वो आग बबूला हो गया, तलवार लगाता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोना शुरू कर देते हैं। वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है जान की लाले पड़ गई है, जब रोना शुरू कर दिए हो। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ओ जालिम नाबकार, हम अपनी जान के लिए नहीं रो रहे हैं, नवाज़े रसूलुल्लाह को जो हमने कत्ल किया है यहाँ कूफा के हालात साजगार है, हम इसलिए रो रहे हैं कि खुदा न खास्ता हमने हमारे साथ ये जुल्म और तशद्दुद किया है, हमारे साथ नाइंसाफी की है। अहले बैत रसूलुल्लाह का छोटा छोटा कुंबा, छोटे छोटे बच्चे और ख़वातीन मुक़द्दस बापर्दा औरतें यहाँ आ जाएंगी, तुम नाबकार जालिमों उनके साथ क्या सुलूक करोगे? हम इसलिए रो रहे हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर बिजली की तरह तलवार आकर गिर गई और सर धड़ से अलग हो गया। और ये अन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अहले बैत रसूलुल्लाह से पहला खतरा हज़रत मुस्लिम बिन अकील का कूफा शहर में गिर चुका था। अब यहीं से तारीख उठनी थी और अहले बैत रिसालत की तारीख लिखी जानी थी जिसे क़यामत तक जो ईमानदार होगा, जो इस्लाम वाला होगा, जो हुसैन वाला होगा, जो अहले बैत
شہدائے کربلا، اپنے شہدائے کربلا، ایک نعرہ ہے کلی، ایک نعرہ ہے نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سب کو معلوم تھا اور کوفہ والوں نے یہ بات مشہور تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ کے دو شہزادے بھی ساتھ کوفہ تشریف لائے تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانی بن عروہ کے گھر سے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے وہاں بھیج دیا تھا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں یہ بات پہنچی یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دونوں شہزادے آئے تھے، دونوں بچے آئے ہیں، تو لشکریوں کو ان دونوں بچوں کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ اکبر، ایسی ظلم و ستم ہے، نبوت اور رسالت کے مہکتے ہوئے پھولوں کو مسلنے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیا۔ قاضی شریح نے جب شہر کے حالات خراب دیکھے تو اپنے بیٹے اسد کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، جاؤ باب العراقی پر، وہاں سے ایک قافلہ ہے مدینہ طیبہ جا رہا ہے، ان دونوں بچوں کو لو اور اس قافلے کے ساتھ کر دو تاکہ یہ شہر رسول اللہ پر حفاظت پہنچ جائے۔ اس کے بعد اسد لیتا ہے، کھانے کی کچھ چیزیں لیتا ہے، بچوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ 6 سال اور 7 سال، 5 سال یا 7 سال، یہ دو بچے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ ہوتے ہیں۔ باب العراقی پر جس وقت پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے، درد اڑ رہے ہیں، دھول اڑ رہے ہیں۔ اسد کچھ دور ساتھ چلا اور اس کے بعد میں گرد دکھا کر کہتا ہے بچوں دوڑ کر چلے جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسد وہیں سے واپس آ گیا۔ اب یہ دونوں مہکتے ہوئے نبوی پھول دوڑ رہے ہیں، چھوٹا بھائی گرتا ہے، بڑا بھائی اٹھاتا ہے، بڑا بھائی گر جاتا ہے، چھوٹا بھائی اٹھاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کے حالات یہ ہو گئے، شام ہوتے ہوتے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے لے جا کے دارالامارت میں رکھ دیا گیا۔ دارالامارت سے حکومت نے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا لے جا کر انہیں جیل میں ڈال دو۔ 5 سال 6 سال کے بچوں کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جو جیلر تھا جس کا نام مشغول بتایا جاتا ہے تاریخ کے حوالے سے، وہ جو ہے محب اہل بیت نکلتا ہے، رات کے وقت اٹھتا ہے، جلدی سے بچوں کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے، لے جانے کے بعد انہیں کھانا کھلاتا ہے، سر پہ جو ہے دستے شفقت رکھتا ہے، اپنی ایک انگوٹھی نکالی اور کہا کہ یہاں سے فلاں چوکی پر جاؤ گے، مدینہ حجاز کے راستے پر تم فلاں چوکی پر چلے جانا، وہاں میرا بھائی جیلر ہے، اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، کہہ دینا کہ مشغول نے بھیجا ہے، تمہیں وہ بحفاظت مدینہ طیبہ پہنچا دے گا۔ اب ادھر سنیے، حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہزادے وہاں سے نکل جاتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، رات بھر چلتے ہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، رات دیکھتے ہیں، پھر وہی در و دیوار سامنے ہیں، پھر وہی کوفہ کے باغات و محلات سامنے ہیں۔ ہائے قسمت نے کیسا ظلم کھیلا ہے، قسمت نے کس طریقے سے تماچا مارا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی سے چھوٹا بھائی سے بڑے بھائی نے کہا بھیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ سے ہم چلے تھے نا وہی طرف واپس آ گئے ہیں، جلدی سے کسی گھر سے دونوں بھائی سہم سے گئے اور ایک طرف کے اور میں جا کر دونوں بھائیوں نے پناہ لی۔ کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دور پر ایک چشمہ ہے، ایک ملکہ کی کنیز جو ہے پانی بھرنے کے لیے اس سے چشمے پر پہنچتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے دو جو ہے چھوٹے چھوٹے ننھے پھول بڑے ہی خوبصورت تنے میں چھٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بلایا آؤ آپ کون ہو؟ ڈرتے ہوئے دونوں بچے پاس آئے، کہا آپ کسی سے کہیں گی تو نہیں؟ ہم کسی سے نہیں کہیں گے، بتائیے۔ بتایا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میری جو ملکہ ہے، میں جس کی غلام ہوں، میں جس کی کنیز ہوں، وہ وہیں پہ اہل بیت ہے، چلو ان کے ساتھ لے چلتی ہوں۔ گھر پہ لے گئی، وہیں پہ اہل بیت واقعی نکلی، بچوں کو کھلایا پلایا، آرام سے ایک کمرے میں لے جا کر آرام کر دیا۔ دونوں بچے سو گئے، رات ہوئی، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں دونوں بچے آپس میں گلے مل کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آواز آتی ہے، اب اس کی ماں کے بیٹے نے پوچھا، اس ملکہ کے بیٹے نے پوچھا کہ اماں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا پڑوسی کی آواز ہوگی، تم سو جاؤ، جس کا نام تاریخ میں حارث بتایا جاتا ہے۔ جب اس نے کہا ماں ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے، اس کی ماں نے کہا بیٹا جانے دے، اس آواز کے چکر میں پڑتا ہے،
आखिरकार हुआ यूं कि उसने ताला तोड़ दिया। क्या देखता है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जिन्हें हम तलाश कर रहे थे, हारिस बदबख्त कहता है तुम्हारी तलाश में हमारा घोड़ा आज मर गया दौड़ते दौड़ते, अब तुम हमारे घर में छुपे बैठे हो। जल्दी से बाल पकड़ता है और उसके बाद में बाहर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों शहजादे साहब से जाते हैं, आपके दोनों बच्चे जो है डरते हुए आपके उत्ते हुए कहते हैं अगर आप हमें यहाँ छोड़ देंगे तो कल महशर में आपके लिए बड़ी ही भलाई होगी, हम अहले बैत नबुव्वत से हैं। इसके बाद में लात घूसा मारने के बाद उस बदबख्त ने फिर उन दोनों बच्चों को उसी कमरे में बंद किया, दूसरा ताला लाकर लगा दिया जिसकी चाबी अपने पास रखी। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, फिर उसी दरवाजे के पास जालिम हारिस आता है और आने के बाद में ताला खोलता है। इस वक्त अहले बैत नबुव्वत के दोनों बच्चों ने उस हारिस जालिम को देखा तो बड़े भाई ने कहा पापा भाई अभी ये फिर मारेगा। इस खौफ से और इस हरास से छोटा भाई जल्दी से बड़े भाई के आगे हो जाता है। दोनों भाइयों के जुल्फों को पकड़कर उससे हारिस ने घसीटना शुरू किया, यहाँ तक कि बाहर लाया। वहीं पे अहले बैत उसकी जो माँ थी दौड़कर बचानी चाहिए लेकिन उसको तलवार मारी जो कान पर लगी और कंधे पर लगी, वो जख्म से जो है ढाल होकर गिर गई। अब उसकी कनीज जो है आगे बढ़ी, बचाना चाहिए, दौड़ा कर उसे जो है एक जगह लड़ा दिया, उसका सर फट गया और उसके बाद हारिस जालिम लेकर हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बच्चों को नहरे फरात के करीब पहुंच गया और उसके बाद में तलवार फजा में लहराई। चाहता ही था कि दोनों को कत्ल करे। बड़े भाई ने कहा ऐसा है कि अगर तुम्हें कत्ल ही करना है तो मुझे कत्ल कर दो, मेरे भाई को छोड़ दो। इतना कहना था, छोटा जल्दी से गले लग जाता है, कहता नहीं भाईजान हम आपके बगैर इस जुल्म वाले शहर में नहीं रह सकते हैं, अगर कत्ल ही करना है तो मुझे कत्ल करो, मेरे बड़े भाई को मदीना तैयबा भेज दो ताकि यहाँ के हालात मालूम हो जाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर किस तरीके से जुल्म और तशद्दुद हुए हैं। इसके बाद में हारिस ने कहा बड़ी जल्दी है तुम्हें मरने की। कहा हाँ हमें मरने की जल्दी है और हम मरते नहीं हैं, जिंदा हो जाते हैं। जो मरते हैं ये नाम पर अल्लाह अल्लाह मौत को इसने नसीहा कर दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है, हम मरते नहीं हैं। उसके बाद में हारिस ने फज़ा में तलवार लहराई और एक झटके में दोनों बच्चों की गर्दनों को अलग कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों नन्हे मुन्ने फूल खानदान नबुव्वत के महकते हुए फूलों को कूफा में रगड़ दिया गया, मसल दिया गया। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली